محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان 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 خدا کی خاص رحمت ہے بزرگوں کی بشارت ہے سبھی نسلوں کی قربانی کئی نسلوں کی محنت ہے اثاثہ ہے جیالوں کا شہیدوں کی امانت ہے تعاون ہی تعاون ہے محبت ہی محبت ہے جبھی تاریخ نے رکھا ہے اس کا نام پاکستان 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 محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان 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 میرا انعام پاکستان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مذاکراتی ٹیم کی طرف سے آپ سب لوگ جو یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ کو رمضان مبارک. اور میرے وہ دوست بہن بھائی بزرگ جو ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ہم سب کی طرف سے رمضان مبارک. نعمان بھائی یہ جو آپ نے کہا اسکرین کے سامنے بیٹھ کے جو دیکھ رہے ہیں تو پیچھے بیٹھ کے بھی کوئی دیکھتے ہیں پروگرام؟ جی آج پہلا روزہ تھا تو آج کا روزہ کیسا گزرا؟ الحمدللہ. اب یہ بتائیے جگایا کس الارم لگا کے سوئے تھے کس نے جگا بھابھی؟ ہم تو سوئے ہی نہیں ہم تو سوئے ہی نہیں. اچھا پہلے روزے کی تیاری اتنی ہوتی ہے نعمان بھائی نیند آتی نہیں. مجھے تو انتظار ہوتا ہے ڈھول بجانے والے کا وہ پیپے والا پیپے والا وہ بھی ایک رونق. بڑا کیوں انتظار کرتے ہیں وہ جو باقی محلوں سے مانگ کے آتے تو اس میں سے کچھ حصہ دے کے جاتا ہے. روزدار سیدھا سابنو کھائے سانو بھی پراٹھے نال دہی کوئی کھوائے. روزدار سیدھا سابنو کھائے سانو بھی پراٹھے نال دہی کوئی کھوائے. روزدار سیدھا سابنو کھائے سانو بھی پراٹھے نال دہی کوئی کھوائے. اج مینو دہی تھوڑا زیادہ دینا جی اج مینو دہی تھوڑا زیادہ دینا جی پراٹھے بھی میں 3-4 ہور لینے جی. اج میرے نال نے نعمان پائی آئے سانو بھی پراٹھے نال دہی کوئی کھوائے. روزدار سیدھا سابنو کھائے سانو بھی پراٹھے نال دہی کوئی کھوائے. اٹھو روزدار سحری دا ٹائم ہو گیا جے اے سیدھا سحری ویلے آ گیا سارے نو جگا گیا دہی دا ریٹ ودا گیا آٹے نو لکا گیا ذخیرہ اندوزاں نو اگے لا گیا. اٹھ جو روزہ رکھ لو نیکیاں کما لو. نعمان بھائی جی تسی دیکھ تے لیا کہ اسی سحری جگانے ہیں ماشاءاللہ لوکاں نو اٹھانے عبادت کرنے ایمان دے نال یقین دے نال کہ پیسے کمائی سانو کوئی پیسہ ملے گا. دیکھ لو جی تسی یہ سوچیا کہ اسی لوکاں نو اٹھانے سانو کون اٹھاندا ہوئے گا؟ کبھی سوچیا؟ میں دسنا جا بھائی ہونا دا چہرہ انہاں دا چہرہ اکھاں چاہندے سانو یقین ہے جے لو جی شیطان دے بند ہون دا ٹائم آ گیا. ویسے کنجوس لوگوں نے تسی بٹھا لیا جناب اے سارے کنجوس لوگ نے کوئی پیسہ نہیں دندے. پچھلے سال دی سن لو جناب میرے نال جو ظلم ہویا انہوں نے جو ظلم کیتا ہے میں انہوں جا کے کہا میں کہ بھائی جان میں سارا مہینہ تانوں اٹھایا سحری دے ٹائم اٹھاندا رہے عید ہے کہ سانو کچھ دے دیو انہیں مینوں نہر تے لے جا کے دھکا دے دیتا یار. اچھا یار ساڈے کول آندا انہیں تینوں نہر تے دھکا دتا سی اسی تینوں چھت تو چھٹ دے کم از کم گیلا تو نہ ہوندا. میں جا کے میں کہ جناب پورا مہینہ تمہیں میں اٹھایا مینو بھی کچھ لاؤ جناب میں تمہیں پورا مہینہ اٹھایا مینو کہنا مہینہ اٹھایا میں کہا وہ کہنا اگلے 2 مہینے تینوں میں اٹھاواں گا. نعمان بھائی آ بندہ مینو دے دے جناب کی کرنا جی اے پچھلے سال دے پراؤٹھے بھی یہ جمع پے نے میں اسی کڈنے نے جناب. تیری بھوک کی میں مکاواں تینوں اتھوں آندا مر نہ جاواں. بھوک ہن ود گئی تیری ہمت مک گئی میری روٹی نو نہ دئیے ہو جاندا اے کمزور پھر کسے بھی کم چ دا لگدا نہیں جے زور منجے بسترے کھا گیا اے دے گھر چ نہیں مردے چور. توبہ توبہ کرا دتی توبہ توبہ کرا دتی ظالما توبہ کرا دتی ظالما. ایک بات تو سچ ہے واقعی مہربانی ہے ان کی
ٹھیک ہے ہم جب رمضان کا مہینہ جب عید آتی ہے تو ان کو کچھ دیتے ہیں، لیکن ہم قدر کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے واقعی آج تک یہ روایت جو ہے اتنے العام آ گئے تب بھی یہ روایت قائم رکھی ہوئی ہے، تب بھی یہ روزانہ رمضان میں آتے ہیں، خوبصورت سا کوئی کلام سناتے ہیں اور ہمیں جگاتے ہیں. بہت سے لوگ اب بھی انہی کا انتظار کرتے ہیں. ایگزیکٹلی صبح صبح یہ لوگ آتے، ڈھول والے آتے، کچھ سمے کچھ اور بن جاتے. بہت موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کو. تمام سحری پر جگانے والوں کے لیے بہت ساری تالیاں جنہوں نے ابھی تک اس روایت کو زندہ رکھا ہے. اس وقت ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں جو دو مہمان موجود ہیں وہ پاکستان کے آل راؤنڈرز ہیں. ہمارے پہلے مہمان کا تعلق شو بز سے ہے. ریڈیو، ٹیلی ویژن، فلم، تھیٹر، ہر میڈیم میں کام کیا اور پاکستان کے پہلے آرٹسٹ ہیں جنہیں اعزازی کانسلیٹ جنرل مقرر کیا گیا رومینیا کا. بہت ساری تالیاں. ویلکم کیجیے عثمان جی گودا. اور ان کے ساتھ جو ہمارے دوسرے آل راؤنڈر موجود ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایا ناز آل راؤنڈر ہے. دور کپتانی میں صرف ایک سیریز ہارے. بہت ساری تھالیوں میں ویلکم کہتے ہیں جناب محمد حفیظ المعروف پروفیسر. سر سب سے پہلے تو آپ کو ہم مذاکرات میں دونوں مہمانوں کو ویلکم کہتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. اینڈ آئی نو بوتھ آف یو آر ویری بزی. تو پہلا ایکسپیرئنس تو نہیں ہوگا غالباً ہمارے چیمپئنز کو فیس کرنے کا آپ کا. نہیں یہ سارے جانے پہچانے پرانے دوست ہیں. سمجھ لیجئے کہ ہم ان کے ریچھ ہے، یہ ہمارے مداری. ان کے اشاروں پہ ہم ناچتے رہے. اور ایسے فنکار جن میں 4 سمیں ہیں، ریڈیو، ٹی وی، فلم، تھیٹر. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ پپو آل راؤنڈر کے سامنے بیٹھ کر آپ کو بات کرنے کا چانس ملے گا؟ بہت اچھا. یہ بڑا فری ہے، اس نے کوئی خون کی بوتلیں لگوائی آپ کو اپنی؟ یہ آپ نے ٹائی کے رنگ سے کہا ہے. یہ کبھی کوئی نالائق بچہ بھی ہوتا ہے، یہ آپ کے نالائق بچوں میں. نہیں ماشاءاللہ ایوری بڈی از ٹیلنٹڈ. اور پاکستان جو ہے میں یہی کہوں گا کہ پاکستان میں جتنا ٹیلنٹ ہے صرف آرٹس میں ہی نہیں، آپ اسپورٹس میں دیکھ لیں. آپ جہاں پہ کہ انسٹیٹیوشنز نہیں ڈیولپ ہوئے، جہاں پہ ہمارے پاس کبھی ایکٹنگ اسکول نہیں تھا لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس بڑے بڑے عمدہ اداکار ہیں. جہاں پہ کبھی بھی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ فلم میکر کا نہیں تھا، ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت اچھے لوگوں نے فلمیں بنائی پاکستان میں. اور اسپورٹس بھی ایک نگلیکٹ ایریا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو نیچرل پاکستان میں جو ٹیلنٹ کی سرج ہے اس کی ویو کو آپ نہیں روک سکتے، وہ چلتی رہ رہی ہے. اٹ ول کیپ آن گوئنگ. تو حفیظ صاحب آپ کا پہلی مرتبہ اتفاق ہو رہا ہے یہ جو آل راؤنڈر ہیں مذاکرات بڑی ٹیم کے سامنے بیٹھ کے میرا خیال یہ پہلی مرتبہ ہے کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور ان کے کام کو کہیں نہ کہیں تو ہم دیکھتے رہتے ہیں اور اللہ ان کو مزید صحت دے، تندرستی دے اور اسی طرح ہم سب کو ہنساتے رہیں. حفیظ صاحب کہہ رہے تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ذرا کہہ دیجیے گا ہاتھ ہلکا رکھیں. اتنے بڑے ہیرو ہیں حفیظ صاحب. سی بی ہے جی کہ میں ایک کم از کم جگت ان سے سن کے جاؤں. حفیظ صاحب ہمارے بہت بڑے ہیرو ہیں، حفیظ صاحب ہمارا فخر ہے. تو ہم تو ہمیشہ یہی پڑھتے تھے، حفیظ کریانہ، حفیظ پان شاپ، حفیظ جنرل اسٹور. نہیں حفیظ صاحب کو ہم سے کیا ڈر، ہم کوئی اسٹین ہے؟ حفیظ شادی ہم کوئی ملنگا ہے یا یہ کوئی تلنگا ہے؟ ہم تو آپ کے دوست ہیں. عثمان بھائی کیریئر کے شروع میں ہی فلم سے آغاز کیا اور فلم بھی ماشاءاللہ انگریزی کی تھی، حالانکہ وہ دور تو فلموں کا تھا، تو پھر اس کو کنٹینیو کیوں نہیں کیا؟ نہیں کنٹینیو تو کیا ایک حد تک. اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ بھائی اب فلم انڈسٹری میں 2-3 سال کے بعد میری آخری پکچر ایز این ایکٹر واز مس ہانگ کانگ. وہ جب ہٹ ہوئی تو ہم نے کہا ٹائم ہے کہ ایگزٹ کیا جائے، کیونکہ جو سیکھنا تھا، جو سمجھنا تھا، اس سے بیونڈ مجھ کو انڈسٹری میں اور نہیں مل سکتا تھا فرینکلی اسپیکنگ، سوائے اس کے کہ ہم وہی چیز کو ریپیٹ کرتے چلے جاتے. اس کے بعد میں واپس ٹی وی پہ آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو عمدہ ترین کام ہے وہ واپسی کے بعد ہے. وین آئی کیم بیک آفٹر 7 years. تیسرا کنارہ واز مائی فرسٹ سیریل آفٹر آئی لیفٹ دا مووی انڈسٹری. اوکے. اور پھر
लिखने की तरफ गए, फिर प्रोडक्शन की तरफ गए, फिर 3-4 साल मेहनत की, कोई पैसे जमा किए, गाड़ी बेची और फिर पहली फिल्म बनाई। अल्लाह अकबर। ये क्या है वजह? जब आपने ज्वाइन किया तो 9वें नंबर पे थी पाकिस्तान की रेटिंग, जब आपने छोड़ा तो 3रे नंबर पे। तो क्या छोड़ने के लिए, अगर एक आधा मैच या सीरीज इंसान हार जाता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, तो हम इतनी जल्दी क्यों रिएक्ट कर जाते हैं? बाय द वे नहीं, ऐसा नहीं है कि जब मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई 2012 में, उससे पहले मैं 2003 से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और काफ़ी क्रिकेट खेलने के साथ जो भी एक्सपीरियंस अल्लाह ताला ने मुझे दिया फील्ड के अंदर, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़कात अशरफ साहब ने इस काबिल समझा, उन्होंने मुझे एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप एज ए कैप्टन लीड करें। जी, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट मेमोरी है, बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं। हाँ। अच्छे काम को इमोशनली भी बहुत चार्ज होते हैं हर वक्त। वो रहेगा क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा पैशनेट है टुवर्ड्स क्रिकेट और इसके फेलियर को हम कबूल नहीं करते। और मैं अक्सर मीडिया में ये बात करता हूँ कि अब बहुत मुश्किल हो गया हम लोगों के लिए खेलना, कि हार के बाद जीतने के साथ ये बात आती है कि जी कौम की दुआओं से जीत लिया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। वो तो कौम की दुआएं हमारे साथ होती हैं, लेकिन जब हार जाएं फिर तो हर चैनल पे एक ही डिस्कशन हो रही थी, जी मैच फिक्स था। हमने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि दूसरों की कौमों की दुआएं भी तो चल रही होती है ना, दूसरों का बात तो बिल्कुल दूसरी कौम में भी तो दुआएं कर रही है अपनी टीमों के लिए। हेलो जी, हाफिज भाई हैं, घर से कॉल है, वो भाभी कह रही हैं जुराबें सूख गई हैं, किसी की हाथ भिजवा दूं। उस्मान पीरजादा साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, मोहम्मद हफीज अल मारूफ प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी जानू कदिया मिल सांवल यार वे, मेरी किस्मत पे तू सवार वे, मेरी डिग्री पूरी हो गई, मैनू दे जा पीली कार वे, अगे मौसम है सैलाब दा, तू हो जा फिर तैयार वे। नकरा गुआ भी मैंने पहली दफा सुना, नाइयों से सुना कि भाजी पुलाज नकरा गुआ पाना। वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। उस्मान साहब, यूथ फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल, मोहनजोदाड़ो में अभी हुआ, सिंध फेस्टिवल, वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल होता था, वो कहाँ चला गया? 2008 में जब इसके ऊपर धमाके हुए फेस्टिवल में और एक थ्रेटेंड सिचुएशन क्रिएट हुई और सेकंड लास्ट डे था जब 3 ब्लास्ट हुए फेस्टिवल में, तो वो 2008 था। तो 2008 से अब तक तो हम उस फेस्टिवल को रिपीट नहीं कर सके। अब देखिए 2008 में तकरीबन 600 आर्टिस्ट पूरी दुनिया से आए हुए थे। वाह, मतलब उस फेस्टिवल में आर्टिस्ट आए हैं होंडुरास से, कोलंबिया से, ये मैं साउथ अमेरिका की सिर्फ अभी, अर्जेंटीना, ब्राजील, निकारागुआ, जिन मुल्कों ने शायद पाकिस्तान का नाम भी ना सुना, दे केम टू दिस। निकारागुआ भी मैंने पहली दफा सुना, नाइयों से सुना कि भाजी पुलाज निकारागुआ पाना। नहीं, निकारागुआ नहीं पाना, असी दालचीनी जो पाती। हकीम कहते जख्म पुराना हो गया तो निकारागुआ बनना पैना पड़ा। लेकिन वो फेस्टिवल उस ब्लास्ट के बाद अनफॉर्चुनेटली उस शेप में नहीं हो सका। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बंद कर दिया गया। उसके अंदर से हम सूफी फेस्टिवल अब अलहदा करते हैं, फोक पपेट फेस्टिवल हम अलहदा करते हैं। वो फोक पपेट फेस्टिवल खास तौर पे एक स्पेशलिटी है जिसको हम सोचते हैं रफी पीर थिएटर वर्कशॉप कि ये वाली वो ट्रेडिशन है जिसको खत्म नहीं होना चाहिए। तो हमने फैजान खास तौर पे, मेरा जो छोटा भाई है, उसने जा के इनको ढूंढा, पकड़ा, इनको कहा कि नहीं आप ये काम न बंद करें। उनके जो पुराने लोग थे उनको इकट्ठा किया। इस वक्त 7 फैमिलीज को आज भी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा,
आप भी इतने नॉलेजेबल हैं और इतना आपका है और कि आपको सबने प्रोफेसर कहना शुरू कर दिया, या इसके पीछे उस्मान साहब जो हैं ये कुछ छेड़ तो नहीं है आपकी प्रोफेसर? नहीं, आपको प्रोफेसर जादू करके दिखाते हो, प्रोफेसर जादूगर। क्रिकेट में वाकई आपने कोई डिप्लोमे किए हुए हैं और वाहिद कोई पढ़े लिखे क्रिकेटर हैं जो प्रोफेसर क्यों कहते हैं? आपका विक्टों को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक उस्मान भाई जो हैं ये इंस्टीट्यूट हिमसेल्फ, और इनकी बाकी बातों का बहुत मजा आ रहा है। और क्रिकेट के हवाले से जी कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है, सो आई शुड बी कॉल्ड एज ए प्रोफेसर। देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? क्रिकेट में बस वो एक मजाक के तौर पे ये चीज ऑन की गई फ्रॉम द ड्रेसिंग रूम, बाहर गई रमीज भाई की तरफ, ऑन एयर उन्होंने एक मरतबा इसको बोल दिया, प्रोफेसर बोल दिया, तो शायद वो बारहा उनके बोलने की वजह से लोगों ने इसको पसंद किया और मेरे नाम के साथ अटैच हो गया। और मैंने भी नहीं, ये जरूर अपने काम के प्रोफेसर हैं, अदरवाइज ऐसे किसी का नाम नहीं पड़ता। शायद इनको इल्म नहीं कि इन्होंने कुछ टिप्स दिए हों, चीजें बातें की हों ऐसी जिनका इनको खुद इल्म नहीं, कि अगले ने कहा कि हाँ यार ये तो प्रोफेसर साहब ने बताया था। क्या रिपोर्ट है फीफा की, कुछ बताएंगे हमें? नुमान भाई, आज जो मैं आपको रिपोर्ट्स दिलाऊंगा बड़ी हैरान कुन रिपोर्ट्स है, मजेदार रिपोर्ट्स है, क्या कमाल की रिपोर्ट्स है मेरे पास, काटने वाली रिपोर्ट्स है मेरे पास। अच्छा, यूरोप के प्लेयर सोरेस ने इटली के प्लेयर चिलिंग को दांतों से काट लिया। मैं तो डर गया भाई, अगर उसने मुझे काट लेता तो मेरा क्या बनता। नुमान भाई मैं तो बहुत खौफ में आ गया हूँ। नुमान भाई ये पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है 2 दफा। नुमान भाई अब इस पे ना 9 मैचों की पाबंदी लगा दी गई है, मजा आया ना इसको। अब इसको पता है कैसे इसको काटने किसी को। लो जी, एक बंदे हुण एक दूसरे नूं दंदियां वड्डण लग पे ने। हैरान कुल किस्म का वाकया है ये। पहली मर्तबा नहीं हुआ, इससे पहले माइक टायसन ने एक बंदे का कान काट लिया। बॉक्सिंग में तो एक बंदा चार्ज हुआ था ना, पड़ रही होती है, तो इसमें तो कोई थोड़ी पड़ रही होती है, ये तो खेल है यार, फुटबॉल है। फुटबॉल तो खेल है, लेकिन इसमें भी आदमी जज्बाती तो हो जाता है, पिंडा गर्म तो हो ही जाता है। नहीं न्योले मियां, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, वो कम हो गई है। मेहमानों के साथ बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अब वक्त हुआ है रोड प्रिंस के सवाल का। और रोड प्रिंस का सवाल है कि हमारे ये ऑलराउंडर जो हैं, मायानाज ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज साहब, इन्होंने पहली सेंचुरी कौन सी टीम के अगेंस्ट बनाई थी? सवाल सुन लीजिए कि मोहम्मद हफीज ने पहली सेंचुरी कौन से मुल्क के अगेंस्ट बनाई थी। मोबाइल फोन उठाइए, एसएमएस कर दीजिए हमें जवाब। आप दुनिया टीवी की वेबसाइट पे भी जवाब लिखकर भेज सकते हैं, फेसबुक पे नहीं जी डीजे। मुंडे कुड़ियां बाबे बाल सब इंजॉय करन फुटबॉल, होया ऐसा इट खड़का पिटबुल लगे जेलू नाल, होण मुकाबले कांटेदार, राणा साहब ने वेख के फीफा साइन कर दिता इस्तीफा। हाय जी, वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। उस्मान पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद हफीज साहब मौजूद है। हफीज भाई, सरगोदा के तो किन्नू बड़े मशहूर हैं, तो ये लेले भी मशहूर ने, टेंट पैकिंग टीम्स जो है ना सरगोदा की, दे वेरी फेमस। नेज़ेबाजी तो वो जो कीनू है वो फिर किनू भेज दियो। किनू तो सरगोदे दे एडे मशहूर ने, किनू दियां दीवारां बना लेंदे ने जो बहुत आ जाए। एग्जैक्टली, तो इस क्रिकेटर ने सोचा था कि ये बड़ा होकर सरगोदा का नाम भी रोशन करेगा? नहीं, कभी नहीं, बिकॉज मैं पढ़ रहा था और उसी दौरानिए में क्रिकेट का शौक बचपन से था। तो जब एक डिसीजन लेना पड़ा मुझे लाइफ में कि या मैं क्रिकेट खेल सकता था प्रोफेशनली या पढ़ सकता था, तो दोनों को एक साथ लेके चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मेरे लिए ये अल्लाह की बड़ी खास रहमत है कि मुझे मेरे वालिदैन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे उस डिसीजन को, उसको ऑन किया। उन्होंने उस पर मुझे बुरा भला नहीं बोला, उन्होंने बोला कि अगर आप ये करना चाहते हैं देन डू इट एट द बेस्ट। वैसे बड़ी बात है, सरगोदा के रहने वाले हैं और इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, वरना वहाँ तो कोई मेहमान है, हफीज आया बैठा या वटकियां 10 भी हफीज आया बैठा। उस्मान भाई, अभी हफीज ने बड़ी अच्छी बात की कि पेरेंट्स की सपोर्ट, और रफी पीर साहब एक बहुत बड़ा नाम, मोतबर नाम, तो अब्बा जी भी सपोर्टिव थे कि, और क्योंकि आप पांचों के पांचों भाई माशाल्लाह एक ही फील्ड में है तकरीबन, वो हमारी अम्मी की कोशिश रही कि मेरा कोई बच्चा डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, क्योंकि जिंदगी का मेजर हिस्सा शी हैड स्पेंट विथ हस्बैंड जो कि एक आर्टिस्ट थे बेसिकली। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली सारे, क्योंकि अब्बा ने हमें कभी भी ये नहीं कहा कि भाई आपने ये करना है, आपने ये करना है, वो सिर्फ कहते थे कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेना बेटा। मैं अभी आपको बता रहा हूँ
अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेना, उसके बाद जाकर ईंट भी लगाओगे तो आई विल नॉट माइंड इट, कम से कम ईंट तुम सलीके से लगाओ। जो सो कॉल्ड BA पास है वो पढ़ा लिखा है। अ पर्सन हु कैन मेक दिस जुत्ती इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मैन हु हैज जस्ट डन हिज BA पास। क्या जरूरत पेश आई कि एकदम हमने पीरूज कैफे ही सोच लिया? एक्चुअली खाना पकाने का शौक, वो तो मुझे मालूम है। अभी मैं मुझे केले सरकार के हाथ की बनी हुई भिंडियां खा के आया हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा इसको भिंडी मत कहो, लेडी फिंगर कहो। नहीं, इसमें भी एक नाम दिया था। क्या? बड़ी मजेदार थी, मेरा दिल करता था दुकान पे वापस रखा। पकाने का शौक मुझे भी, फैजान को भी, सबको। दूसरा ये कि जब म्यूजियम बनाया वहां पे, तो हमने सोचा कि लोग इतनी दूर से इसको देखने के लिए आएंगे, तो लेट्स मेक अ कैंटीन काइंड ऑफ अ थिंग। सो द कॉन्सेप्ट उधर से शुरू हुआ। जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, जब वो क्रीज पे आते हैं और आप बॉलिंग करने आते हैं तो उनका त्रा निकल जाता है। तो क्या एक ऐसा आर्ट है आपके पास? क्यों इतना खौफजदा हैं वो आपसे? मैं जी सो कॉल्ड लेफ्ट हैंडर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। लोग मुझे कहते हैं कि जी जब भी लेफ्ट हैंडर आए तो फीस को बॉलिंग दे दो तो आउट कर देता है। ऐसा नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन यह है कि कुछ ऐसा को काम चल रहा है, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल रहा है माशाल्लाह, कि सीधा बॉल फेंकता हूँ, उनको लगता है ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक खेलने जाते हैं, सीधा रह जाता है। तो आई थिंक तो इसका मतलब है कि फॉल्ट आपकी बॉलिंग में है। बिल्कुल हफीज भाई जैसे बंदे की ना साइकिल जरूर चोरी होती है, और आप कैसे उठाते हैं? इस जैसे बंदे जाते हैं दूध दही की दुकान पे, तो साइकिल खड़ी की, बड़ी गर्मी है, लस्सी बना यार, ओए ओए ओए, हाँ ठंड पै गई, ऐसे ठंड पै गई, पिछू साइकिल चुकिया गया। वो तो घर जाते ने, घर देने कोई एतबार नहीं करता, साइकिल चोरी हो गई, तेरी चोरी है, सारी दुनिया चलाउंडी, तेरी चोरी हो गई। लोग लस्सी पिया के ठंड पा रहे ने, आप ठंड तो डरते ने। जिन्होंने हल्का हल्का मौसम से लस्सी वाला ने जगह कहते 4 गिलास बना, वो इंज बना रहे, उतो बारिश आई तो वेख के कहना भाई लस्सी वापस नहीं होनी तेन। मैं कहा ना वापस का मेरी है, मैं पीरू भाई जी लैन आया। पीर जगह सब कितने खूबसूरत है माशाल्लाह, इतना चेहरा देखो, हैंडसम, स्मार्ट, खूबसूरत। ऐसी अंग्रेजी किताबों में तस्वीरें नहीं होती, इन्होंने लालटेन इजाद की थी। तो सर जी आपकी तो तस्वीर लगी होती ना कि इस बंदे ने लालटेन इजाद की, तो साथ ही चाचे की लगी होती, इसमें से इसने तेल पिया था। नहीं, वो दो खबरें होती हैं। इस आदमी ने बचपन में लालटेन इजाद की, बड़े होकर गीजर इजाद की। कितने पैसे बने इस घर में? कभी क्रिकेट की बॉल के साथ रुक्का चिपका के किसी के घर पर लिखा हो? नहीं, मुझे आए जरूर है। तू सोना मेरा वीर। नहीं, ये पूछे ना कि रुक्का क्या बॉल पे लिपटा हुआ है या किसी और तरीके से? हाँ, चलिए आने के तरीके डिफरेंट थे, लेकिन आए जरूर। तो जो घर में बेगम है, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? जी अरेंज मैरिज है। तो आगे माशाल्लाह छोटी दुनिया। जी मेरे 2 बच्चे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। फटाफट क्यों बता रहे हो, आराम से बताओ। कप्तान रह चुके हो, मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बजे आया था, 4 बजे मेरे अपने, इसलिए मैं जल्दी बता दूं। टीम में सबसे ज्यादा मज़ाहिया कौन है, जुगते कौन लगाता है सबसे ज्यादा? अब आपने जिक्र किया था फैसलाबाद का, तो सैयद अजमल एक ऐसा करैक्टर है, उसे जुगते पढ़ते भी बहुत ज्यादा और वो मारता भी बहुत ज्यादा। उस्मान भाई, कहा जाता है कि दोनों मियाँ बीवी का अगर ताल्लुक एक ही प्रोफेशन से हो तो जिंदगी बड़ी बोरिंग सी हो जाती है, क्योंकि वो भी मसरूफ होते हैं और आप भी मसरूफ होते हैं। तो माशाल्लाह दोनों का ताल्लुक एक ही प्रोफेशन से, तो क्या लाइफ बोरिंग हुई या ज्यादा थ्रिलिंग हो गई? आई थिंक अगर आप एक ही प्रोफेशन से हों, इट इज मोर थ्रिलिंग बिकॉज आप शेयर कर सकते हैं बहुत सारी चीजें, आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। मैं एक वाकया आपको सुनाता हूं। बीवियां हमेशा बिचारी होती हैं कि मेरी शूटिंग थी स्टूडियो में, तो मैं जब निकलने लगा रात को, तो हमारी एक को स्टार थी नवीन ताजिक, वो कुछ अरसे के लिए आई, वेरी नाइस
यंग लेडी, तो उसने मुझे कहा कि उस्मान आप मुझे घर उतार सकते हैं, क्योंकि वो भी गुलबर्ग में रहती थी, मैं भी गुलबर्ग में रहता था। तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, आए मैं आपको छोड़ दूंगा। अब जब हम गुलबर्ग में एंटर हुए तो उसने मुझे कहा कि क्योंकि घर पे कोई नहीं है, प्लीज जरा गोगो पे 1 मिनट रोक लेना, मैं वहां से कोई बर्गर या कोई सैंडविच ले लूं। हमने जाकर गोगो में गाड़ी रोकी, उसने अपना बर्गर या जो भी ऑर्डर करना था वो ऑर्डर किया, पैक हो गया। वो हम 10-12 मिनट बाहर बैठे, वो उसके बाद हम चले गए उसको छोड़ के। चंद रोज के बाद मेरी वाइफ जो है वो मेरी मदर के साथ किसी जगह पे गई जो औरतों का फंक्शन था। उधर एक आंटी थी, उस आंटी ने समीना को कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारा मियाँ एक्टर है, जरा बड़ा ख्याल रखना। तुम्हें पता कल मैंने देखा उसको रात 11:30 पौने 12 बजे गोगो के बाहर वो एक लड़की के साथ गाड़ी में था। तो मेरी बीवी ने कहा अच्छा कब की बात? उसने कहा परसों वो गाड़ी में था लड़की के साथ। तो समीना ने उसको कहा कि कैसी थी? उसने कहा बहुत खूबसूरत थी। तो समीना ने कहा शुक्र है बात शक्ल के साथ नहीं बैठी। ऐसा कोई वाकया हुआ? क्योंकि भाभी अक्सर साथ जाती होंगी इंटरनेशनल, आप जब भी जाते होंगे खेलने के लिए, तो कभी ऐसा हुआ कोई फैन आई हो और लिपट गई और बहन हमारी ने कहा हो सामने नहीं हुआ? हाय मैं गई तो सामने नहीं हुआ, साइड पे हुआ। अच्छा, वेरी इंटेलिजेंट प्लेयर, ही इज अ प्लेयर। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी मेरी जान, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जो कुछ मिला सड़क से उठाता चला गया, इनकम पे मेरी टैक्स बढ़ाता चला गया, तो फिर भी मुझे लूट के खाता चला गया। डीजे लगा के आग में रत्ती को रात भर, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। रल बोलो वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। जी सामिया जी, क्या कहते हैं हमारे मेहमानों के सितारे? नुमान, ये पहली शब्द मैं अपने मेहमान में ये कहना चाहूंगी जो एजाज मेरे जायचे को हासिल होता है कि जो बिल्कुल वही बातें करे जैसा इनका जायचा। शौकीन मिजाज तो बहुत ज्यादा, रंगीन मिजाज भी है, सख्त हुस्न परस्त। सर गलत समझ आ गई होनी जो उन्होंने नहीं की थी। बिल्कुल सही जायचा कीता जी। यस, आई एंजॉय ब्यूटी, ब्यूटी इन women, beauty in nature, beauty in the creation of God. And you love to be around beautiful people as well. People with beautiful minds. Brains. Okay. Yes. Love marriage? जी लव मैरिज ऑफ कोर्स। सर ये लव मैरिज आपकी तरफ से या भाभी की तरफ से भी ऑफर की? उन्हीं की तरफ से ऑफर। नहीं सच कह रहा हूँ, अपनी वैल्यू बता रहे हैं ना। मैं सच कह रहा हूँ, उन्होंने मुझको प्रपोज किया था। आप भी सुपरस्टार थे, भाभी भी सुपरस्टार थी वहाँ पे। नहीं, तब उन्होंने एक्टिंग नहीं शुरू किया था। नहीं, वो बिल्कुल गुमनाम थी, ये सुपरस्टार हीरो थे। वो तो तब MBA कर रही थी। ज्यादा स्काई कलर कपड़े पहनते थे उन दिनों में। तबीयत में एक एलिमेंट होता है फ्लर्ट करने का, तो वो तबीयत में है सरकार की है। That's an art. That's an art. I agree with you. And lot of women enjoy this. Instead of approaching them in an ugly manner. I mean, flirting does not mean, flirting का मतलब ये नहीं है कि आप कोई प्रपोजल भेज रहे हो। Flirt is also wit. You know? एक क्वालिटी जो मुझे उस्मान भाई में जो बहुत ज्यादा जोर से नजर आती है, ही इज अ ग्रेट चार्मर। जब ये गुफ्तगू करते हैं, माशाल्लाह, वाह। शाखर चेंज सरकार, सचमुच आप अगर इन्हें मुल्क का बजट बनाने का इख्तियार दे दें तो ये वहाँ भी छा जाएंगे। इंतहाई दूरंदेश, इंतहाई हाईली विजडम, कैलकुलेटेड। हाँ, वेरी कैलकुलेटेड। क्यों उस्मान भाई, घर का बजट आपके हाथ में है या स्मीना के हाथ में है? यू डू इट? ओके, आई डू ऑल द शॉपिंग, आई डू द ग्रोसरी एंड एवरीथिंग। मुझे तो अपने जायचे की फिक्र होनी शुरू हो। सामिया जी, कोई सितारों की चाल चलन कुछ ऐसा इंडिकेशन देते हैं कि शायद सियासत में कोई ऑफर आ जाए आगे जाके? आप यकीन कीजिए कि इन दोनों मेहमानों को अगर ये अपॉर्चुनिटी मिले, दोनों का सेटरन ऐसा है कि इनको सियासत शदीद रास आ सकती है, शदीदन। और हमारे अलमारूफ प्रोफेसर साहब के सितारे क्या कहते हैं? अच्छा जी, सेल्फ मेड आदमी, टोटल सेल्फ मेड आदमी, शरारती मगर शरीफ,
शरीफ शरारती शरारत करके माफी अगले ने उतो धक्का देना जितो सट ना लगे। शरीफ बदमाश। बड़े अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे, बड़े वफादार दोस्त। जो लोग इनके दोस्त हैं वो बड़े ब्लेस्ड हैं और इनको किस्मत से अच्छे दोस्त मिलते भी हैं और इस मामले में खुशकिस्मत ये। एक मिनट जी, दोस्तियों के हवाले से बताइए। आई थिंक अभी तक तीनों चीजें जो इन्होंने बताई हैं, सेल्फ मेड अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो, और दोस्ती बहुत कम दोस्त हैं लेकिन जो हैं वो बहुत पक्के दोस्त हैं और कोशिश करता हूं कि हमेशा उनके काम आ सकूं। अच्छा, इंतहाई देसी रूह, मौलाना रूह। अच्छा, मौलाना रूह इनके अंदर एक वो पाया जाता है कि अंदर से बेगम मेरी अक्सर कहती है कि बस आपने दाढ़ी नहीं रखी हुई। हाँ, जो इंतहाई अमन पसंद और रवैयों में सियासत अच्छी कर लेते हैं। यहाँ रुकिए, अमन पसंद से जब इन्होंने बात की तो भाभी के साथ कभी हुई झड़प? कोई नहीं, इख्तलाफ राय कभी भी? वी आर ब्लेस्ड। शरीफ बदमाश, शरीफ बदमाश यानी साड़ी ला के माफी मांग लड़ी। जो मर्जी वो कहें, आगे से कहते हैं हाँ तुसी ठीक कह रहे हो। रिलेशन की कामयाबी में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। गरीब आदमी ने नजर चाहिए, बीवी ने दवाई लैके दे रहा है, तेन कहा तेन राम आने बच्चे मैं संभाला तू राम है। ये थले लगे हो ना बड़े लोग, पीरू भाई सारे रिश्तेदार तारीफा कर रहे, इन्हों की बड़ी अंडरस्टैंडिंग है आपस अंडरस्टैंडिंग का जी। सैंडल भी चुके हैं, पर्स भी बच्चा भी चुके हैं, बच्चे को कोट रहे हैं, तेरी मामा सोई हुई है, वो मुझे डांटे सो जा। आपके बहुत से क्रिकेटर करीबी दोस्त भी हैं, तो कौन कौन से क्रिकेटर्स हैं जो अपनी वाकई बेगमात से डरते हैं? नहीं जी, मैं किसी को इतनी हद तक नहीं जानता। अगर जानता भी हूं तो बताना नहीं चाहता। मैंने कहा था सियासत राज। मैं उसी पॉइंट की तरफ ला रहा था कि अभी उन्होंने बोला कि आप सियासत बड़ी अच्छी कर लेते हैं। हफीज भाई बड़ा प्यारा आदमी है ना, बहुत प्यारा खूबसूरत है। ऐसे बंदे जगह पूछो ना किधर आए हो, मैं इंजेक्शन लगवाने आया हूँ। अच्छा, आप नियर फ्यूचर में क्या जायचे के अकॉर्डिंगली देखती हैं कि हफीज साहब हमारे दोबारा हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे? हफीज साहब जी माशाल्लाह अपनी एज के बहुत लेट तक आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अपना करियर बहुत आगे तक इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। मिसबा साहब का रिकॉर्ड तोड़ेंगे 40 बिल्कुल तोड़ेंगे जी। वो मैं सुन रही थी, मैं सोच रही थी कि तोड़ेंगे रिकॉर्ड उनका। और मिसेस हफीज को आखिर में एक पैगाम जरूर देना चाहूंगी जायचे को देखते हुए कि शादी एक ही है, जब तक आप खुद कभी आंखों से कुछ ना देखें आपने इन्हें कुछ नहीं कहना। अरे वाह, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी मेरी जान, गम है या खुशी है तू, वजह बेबसी है तू, मैं हूँ बिजली का सारिफ, खर्चा गर्दिशी है तू, जैसा पहले होता था आज भी वही है तू। हाँ मिला क्या तुझको यूं रंगबाज बनकर, गुल्लू भयंकर, गुल्लू भयंकर, गुल्लू भयंकर, अरे गुल्लू भयंकर। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। 23 जून के प्रोग्राम के विनर से आपकी मुलाकात करवाते हैं। उनका नाम है अल्लाह रखा और अल्लाह रखा साहब का ताल्लुक है जनावाला से। आइए तशरीफ लाइए जनाब। अल्लाह रखा साहब मुबारक। हमने एक सवाल पूछा था कि वो हमारे कौन से पायलट थे जिन्होंने दुश्मनों के 5 जो जंगी तैयारे हैं वो मार गिराए थे, तो वो कौन थे? एम.ए. मालूम। क्या लो जी, अल्लाह रखा साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो रोड प्रिंस की ये मोटरसाइकिल। अब इसको स्टार्ट कीजिए और चला के वहां तक ले जाइए। बहुत तालियां भाई के लिए। हाँ देखा, हो गई, चलने तो दो। चलो उधर ला जाओ आराम से। बहुत सी तालियां। यहां बताता चलूं 24 जून के प्रोग्राम के विनर का नाम वो खुश नसीब है खुर्रम शहजाद, और खुर्रम भाई का ताल्लुक है आपके शहर फैसलाबाद से। बहुत सारी तालियां खुर्रम भाई के लिए, मुबारक हो।
उस्मान साहब थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वाकई हफीज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए, बड़ा मजा आया, बड़ी लव यू ऑल सर। और हमारी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप दोनों को इसी तरह कामयाबियां और कामरानियां अता फरमाए। सर हमारे प्रोग्राम के एंड में हमारे डीजे डार्लिंग जो कौम के दिल की आवाज होती है एक पैरोडी सॉन्ग के जरिए पेश करते हैं, अगर आप दोनों की इजाजत हो तो हम जी डीजे। गुल्लू भयंकर गुल्लू भयंकर गुल्लू भयंकर, अरे गुल्लू भयंकर गुल्लू भयंकर गुल्लू भयंकर, अरे गुल्लू भयंकर। मिला क्या तुझको यूं रंगबाज बनकर, गुल्लू भयंकर गुल्लू भयंकर गुल्लू भयंकर, अरे गुल्लू भयंकर। गुल्लू ख़बार हो रहा है ऐसे यार जैसे पुरसा बेकार, जैसे चोरी की कार। गुल्लू से पूरा अंजाम नहीं रे, सारी दुनिया में ऐसा बदनाम नहीं रे। गुल्लू से पूरा अंजाम नहीं रे, सारी दुनिया में ऐसा बदनाम नहीं रे। गुल्लू को पेशी पे पड़ गई फैंटी, मुक्के थप्पड़ लाते पड़ गए सैंडल। आई आवाज गुल्लू को जूते मार, बुकला भी कह रहे थे अरे गुल्लू को मार। मिला क्या तुझको यूं रंगबाज बनकर, गुल्लू भयंकर गुल्लू भयंकर गुल्लू भयंकर, अरे गुल्लू भयंकर। दुनिया के हर लड़के को मोहब्बत जरूर होती है, और एक दफा नहीं होती, एक से कई मर्तबा होती है। बहुत सी तालियां। में क्या चीज ना हो तो मूड खराब हो जाता है, दही भल्ले। दोस्तों भी फंक्शन होते हैं, हाँ जी, तो वो कहते हैं कि हमें भी कोई 4 कॉमेडियन चाहिए। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਛੱਡਤੀ।